Hello student, welcome to my channel Code with Rahul Kumawat. Today we are going to discuss a very famous question which is based on this two pointers approach. Before explaining this question, I just want to briefly explain you about why this lecture series is important. As you know, this is lecture number 4 on two pointers approach. I have uploaded 3 lectures so far in this two pointers approach. If you are learning data structure algorithm, machine learning, system design, low level design, high level design, I have decided to upload all the quality video lectures on YouTube free of cost to people. In addition to it, I just want to explain you that why this series is important, because I have created this two pointers handwritten notes which is also available in description. You can watch the video. After watching the video, you can learn the concept which is written here in very lucid format, and after reading the theories, after reading the algorithm, after reading the code, you will realize that you have saved your lot of amount of time, and all the methods, all the patterns which are very much related to your interview process in farm companies are covered in this. All the two pointers pattern, all the two pointers methods are covered in this. I am going to discuss one by one, and this is our lecture 4. So you will watch the lecture video on YouTube, and after watching the video you can learn the concept, learn the theory that is written here. Okay friends, so yes, we are going to briefly explain you that why this two pointers approach is important in this question. So yes, we are going to discuss that this two pointers approach questions is what. In this question, given an array of integer nums and an integer key, it means an array of integer nums and integer key is given to us. Written the total number of subarray whose sum equal to key. Return the total number of subarray whose sum equal to key. And a subarray is a contiguous non-empty sequence of the element within the array itself only. So yes, this question is also given in our lead code. This is lead code, and where this question is given to us. For example, if nums is equal to 1 1 1 and the k is equal to 2, it means we need to find the number of subarrays whose sum equal to 2. For example, if it is 1 1 1 and k is equal to 2, so there are two possibilities, this 1 and 1, and another one is this one and this one. So these are two subarrays which we have. And after explaining the example 1, I'm going to explain example 2. In example 2, nums is given to us is 1 2 3 and k is equal to 3. So yes, that one possibility here is 1 and 2, and then second possibility here is itself 2 only. So there are two possibility, there are two subarrays which are going to exist in this array, and that's why the answer is what? Answer is 2 only. Okay, so now you can understand the question. The question is pretty simple. Question itself state that the total number of subarrays whose sum equal to k, we need to find those number of subarrays. So yes, first of all we are going to learn the concept in our whiteboard. Okay, so yes, if we are going to thinking about it, सो द टू पॉइंटर्स अप्रोच में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. ओके ओके, सो यस, पहले हम इसी एरे को लेते हैं जो कि यहाँ पे हमें दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल द एरे इज, दिस इज एन एरे फॉर एग्जाम्पल, एंड द एरे इज वॉट 1 1
2 and then 3. Okay, and the output is the k is equal to given to us is 2 only. I think k is what? K is 3. K is 3. So if k is 3, then this is 1 and 2 and then 3 only. Okay, the 1 and 2 and then 3 itself only. Yes, pardon, this is 1 and 2, the first element, and the second is 3 only. Actually I forget first before that. So yes, that is 3, and k is equal to what? K is given to me is what? K is given to me is 3. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें चेक करेंगे एक एरे को, सब एरे को, कि कौन सी सब एरे का सम 3 के बराबर हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसमें स्टार्ट करेंगे आई को, सपोज दिस इज आई एंड सपोज दिस इज आई, एंड यहीं पे हम एक एरे ले लेते हैं जो कि यहाँ पे कितना है? जे है, यानी ये आई भी है और ये जे भी है। 2 पॉइंटर्स अप्रोच की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम क्या करेंगे? स्लाइडिंग विंडो का इसमें यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? आई को तो यहीं रहने देंगे, लेकिन जे को आगे बढ़ाएंगे, इस डायरेक्शन में जे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जे को आगे बढ़ाएंगे तो जे यहाँ आ गया इन अगले इटरेशन में, सपोज दैट जे यहाँ आ गया। अब जे अगर यहाँ आ जाता है तो हमारा अब टोटल स्लाइडिंग विंडो कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? अब हमारा टोटल स्लाइडिंग विंडो इतना हो जाता है। हम इसके अंदर चेक करते हैं कि इसका सम क्या 3 के बराबर है। तो यस, इसका सम 3 के बराबर है। इसका सम अगर 3 के बराबर है तो हम इसको क्या कर लेते हैं? हम इसको काउंट कर लेते हैं कि भाई यस दिस इज वैलिड ऑल्सो, कि भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वैलिड, ये वैलिड हो गया। ठीक है, ओके, ये वैलिड हो गया। अब अपन क्या करते हैं? फिर आगे स्लाइडिंग विंडो को लेकर जाते हैं। अब सपोज करो यहां पे ये 2 नहीं होता, सपोज करो यहां पे ये 2 नहीं होता, सपोज करो एक बार यहां पे 2 नहीं होता, ओके, और यहां पे कितना होता? सपोज करो यहां पे 1 ही होता। ठीक है, अब इस स्लाइडिंग विंडो में देखो, इनका समेशन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्या 3 के बराबर है? तो हमने बोला नहीं है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो 2 क्या है बच्चे? 2 छोटा है 3 से। 2 क्या है? छोटा है 3 से। ठीक है जी, अब अगर 2 छोटा है 3 से तो हमें 3 तक पहुंचना है। ध्यान से समझना, यहां पे 3 तक पहुंचना है। 3 तक पहुंचने का मतलब है हमें और एलिमेंट इस हमारी सब एरे में चाहिए, और एलिमेंट इस सब एरे में चाहिए। ठीक है जी, और अगर इस सब एरे में एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? अब जे को इधर मूव करेंगे। समझ रही हैं आप? इस जे को अब इधर मूव करेंगे और अब हमारा जो नेक्स्ट सब एरे हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। और इसका समेशन कितना आ रहा है? देखो 3, 1 and 1 दैट इज 5 आ रहा है। अब कितना आ गया है बच्चे आदमी? अब आ गया है मेरे पास में 5। 5 क्या 3 के बराबर है? तो नहीं है। 5 क्या है? 3 के बराबर नहीं है। तो 5 क्या है? 5 इज ग्रेटर देन 3 है। 5 क्या है? ग्रेटर देन 3 है जी। 5 तो ग्रेटर देन 3 निकला। तो यानी अब हमें 5 से 3 जाना है। हमारा टारगेट तो 3 ही है। 3 का इन द सेंस क्या है कि हमें इसमें नंबर घटाने चाहिए। अब हमें नंबर और नहीं चाहिए, अब हमें नंबर कम चाहिए। अब हमें नंबर कम चाहिए, इसका मतलब हमें यहाँ से नंबर हटाना है। अगर हमें यहाँ से नंबर हटाना है,
इसका मतलब है कि इस आई को कहाँ ले जाइए, आगे ले जाइए। आई को आगे ले जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, देखिए आई को आगे ले जाएंगे अगर आप, मैं इसको मिटा देता हूँ फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो जैसे ही हमने यहाँ पे आई को आगे मूव करवाया तो अब क्या हो गया, आई यहाँ आ गया। आई कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है जी, आई अब यहाँ आ गया। और अब कितना हो गया आपका वैलिड सब एरे, कितना हो गया, इतना हो गया, 1 और 3 हो गया। अब चेक किया कितना आ रहा है, अब इसका समेशन कितना आ रहा है, अब इसका समेशन आ रहा है दैट इज 4 एंड 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। हाँ या ना, 4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। इसका मतलब सिंपल ये है कि हमें 4 को भी हटाना है, हमें 4 को भी हटाना है। दैट्स वाई हमें 4 को भी हटाना, 4 से भी हमें क्या करना है, और नंबर घटाने हैं। और कहाँ पहुँचना है, 3 तक पहुँचना है। 4 को भी हटाना है और कहाँ तक पहुँचना है, हमें 3 तक पहुँचना है, 3 तक पहुँचना है। तो 4 को भी हटा के अगर हम 3 तक पहुँचे, 4 को भी हटा के अगर हम 3 तक पहुँचे, इसका मतलब हमें और एलिमेंट हटाने हैं। और एलिमेंट हटाने का मतलब क्या है, अब हमें आई कहाँ ले जाना है, आई अब यहाँ ले जाना है। और अब हमने फिर से सब एरे सिकुड़ के कितना हो गया, ओनली इतना हो गया। ओनली कितना हो गया, ओनली इतना हो गया। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे अब एलिमेंट का समेशन कितना आ गया बच्चे, अब एलिमेंट का समेशन आ गया 3 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3। और यही आपका एक और आपका सब एरे मिल गया। तो यानी हम इसमें क्या समझ रहे हैं, मोटा मोटा हम इनमें ये समझ रहे हैं कि अगर हमें नंबर बढ़ाने हैं, 2 से 3 करने हैं, अगर हमें नंबर बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, हम जे को इधर लेकर जाएंगे। अगर हमें नंबर बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, हम जे को इधर लेके जाएंगे ताकि आई और जे से स्लाइडिंग विंडो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएं। और अगर हमें नंबर इनका समेशन कम करना है तो हम क्या करेंगे, हम आई को राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। आई को राइट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। आई को राइट डायरेक्शन में इसलिए लेकर जा रहे हैं, आई को राइट डायरेक्शन में इसलिए लेकर जा रहे हैं ताकि अब आई और जे में जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। आई और जे में जैसे डिफरेंस कम होगा तो हम कम की तरफ जाएंगे, जैसे इनमें डिफरेंस बढ़ेगा तो हमारे अंदर इनका समेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, हमारे अंदर समेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल मीनिंग बस ये है। अगर आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो जे को इधर खिसकवा दीजिए, आई यहीं पे है, जे को इधर खिसका देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा आ गए। और अगर मान लो अगर हमें नंबर की रिक्वायरमेंट्स कम है, जैसे अगर हमें 5 है और हमें चाहिए 3, यानी हमें कम चाहिए, कम चाहिए का मतलब क्या होता है, आई को आगे ले जाओ और जे को सेम रखो, जे को सेम रखो और आई को आगे ले जाओ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो समेशन भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दैट इज़ वेरी ईजी राइट नाउ। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको कोड कर देते हैं। आई एम राइटिंग कोड इन जावा, ठीक है, आई एम राइटिंग कोड इन जावा ओनली। तो ये आप याद रखना कि जावा के अंदर ही मैं कोड लिख रहा हूँ, बिकॉज जावा के अंदर ही काफ़ी जो है वो है डिमांड आ रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर राइटिंग कोड इन जावा ओनली। एक्चुअली मेरा पहले भी कोड ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस, वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट कि एक बार वापस से इसको लिखा जाए। ओके, तो ये तो हम क्या ही लिखेंगे, देखो इंटीजर एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, कि भाई नम्स का लेंथ कितना है, हमने एन के बराबर इसको एन में स्टोर करवा लिया। इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 1। 2 पॉइंटर्स के लिए हमने पहला एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट को 1 के बराबर लिया है। आंसर को हमने यहाँ पे 0 ले लिया है। आंसर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ सब एरीज, ठीक है। आंसर रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ सब एरीज, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, आंसर रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ सब एरीज, ठीक है। और
परफेक्ट सम, पी सम पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीफिक्स समेशन, प्रीफिक्स समेशन ऑफ एरे। ठीक है, प्रीफिक्स समेशन ऑफ एरे क्या होता है, प्रीफिक्स समेशन का सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये है, देखो प्रीफिक्स समेशन क्या होता है, जैसे सपोज योर एरे इज 2 3 4 5 6 7, सपोज दिस योर एरे। सो प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स सम का अगर मैं एरे यहाँ पे निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 2 एंड 2 and 3 will be 5, 5 and 4 will be 9, 9 and 5 will be 5 and 4 will be 9. Oh sorry, 2 and 2 and 3 is 5, 5 and 4 will be 9, and 9 and 5 is 14, and 14 and 6 is 20, 20 and 7 is 27. This is your perfect sum, मतलब सिंपल इसमें जोड़ना है, that is 2 is 2, 2 and then 3 is perfect sum 5, then second में 2 3 and 4 that is 9, फिर 2 3 4 and 5, then 2 3 4 5 and 6, then 2 3 4 5 6 and 7 that is 27. तो that is perfect sum only. Okay, perfect करना है, जो भी पहले एलिमेंट आ रहे हैं सबको जोड़ते भी जाना है, then you will get perfect summation only. Okay, that is easy, that is not that much tough. Okay, so yes, we are going to start a while loop here. हम यहाँ पे while loop को यहाँ पे शुरू कर देते हैं। while loop में j इज लेसर देन n होना चाहिए, तब तक हमने यहाँ पे इस लूप को चलाया। हमने क्या चेक किया, इफ परफेक्ट सम जो है इज इक्वल टू k, अगर परफेक्ट समेशन हमें मिल गया, इसका मतलब वी नीड टू इंक्रीज आंसर, हमें आंसर बढ़ा लेना चाहिए, कि अगर परफेक्ट समेशन हमें मिल गया तो हमें आंसर को बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना है, परफेक्ट सम को तो बढ़ाना ही है। परफेक्ट सम विल बी इक्वल टू व्हाट, परफेक्ट सम विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ j, जो भी आपका j है उसको परफेक्ट समेशन में परफेक्ट सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ j हो जाए। कि परफेक्ट सम क्या होता है कि जो भी एलिमेंट आ रहा है, करंट एलिमेंट आ रहा है, उसको जोड़ते जाइए, करंट एलिमेंट को जोड़ते भी जा रहे थे, तो दैट वाई परफेक्ट सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ j। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर परफेक्ट समेशन इक्वल टू के हुआ तो हमने आंसर को बढ़ा लिया। परफेक्ट सम इस वाले एलिमेंट का हमने चेक कर लिया, जो करंट एलिमेंट है उसको जोड़ दिया, तो दैट वाई परफेक्ट सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ j हो जाए। और अब एक कंडीशन क्या आएगी कि परफेक्ट सम इज ग्रेटर देन की, क्योंकि परफेक्ट सम ग्रेटर देन की है एंड i इज लेसर देन j है। i जब से लेसर देन j हो जाए और परफेक्ट सम ग्रेटर देन की हो जाए, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें परफेक्ट सम में से घटा देना है नम्स ऑफ i को। क्यों नम्स ऑफ i को हटाएंगे, हमने इसलिए नम्स ऑफ i को हटाया क्योंकि जैसे ही हम नम्स ऑफ i को यहाँ से हटाते जाएंगे तो स्लाइडिंग विंडो में विंडो छोटी होती जाएगी। तो दैट्स वाई द स्लाइडिंग विंडो में नम्स ऑफ i को जैसे ही हमने हटा दिया, नम्स ऑफ i को हमने हटा दिया, तो स्लाइडिंग विंडो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, एंड i को आगे बढ़ा देंगे कि भाई i अब जो हो जाए वो आगे वाला एलिमेंट हो जाए। सो यस, परफेक्ट सम माइनस i इज इक्वल टू नम्स ऑफ i एंड देन i प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगी, लास्ट में j प्लस प्लस हो जाए। j को तो बढ़ाना ही हमें, हर एलिमेंट में ही हमें j को बढ़ाना है कि भाई j तो हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि हमने परफेक्ट सम में नम्स ऑफ j को जोड़ लिया है। तो अगर ये i इज लेसर देन j के बराबर आ जाएगी और परफेक्ट सम इज ग्रेटर देन की आ जाए, तो परफेक्ट सम में से माइनस कर देंगे नम्स ऑफ i को बढ़ा देंगे, और i को बढ़ा देंगे तो हमारा स्लाइडिंग विंडो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी जब परफेक्ट सम ग्रेटर देन की होंगे। और उसके बाद में क्या करना है, j को तो हमें बढ़ाना ही है। j को क्यों बढ़ाना है, बिकॉज j को बढ़ाएंगे तभी हम आगे वाले एलिमेंट पे पहुंचेंगे। भाई ये वाला स्लाइडिंग विंडो हो गया, अब हम आगे वाले एलिमेंट पे पहुंचेंगे नेक्स्ट इटरेशन में। ठीक है, ओके, एंड देन ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने पहले परफेक्ट सम निकाला, परफेक्ट सम को कैलकुलेट किया कि अगर परफेक्ट सम इक्वल टू के है तो आंसर को ही बढ़ा दिया। बट हम इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम परफेक्ट सम को
कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि ये के बराबर है या नहीं है। इसका मतलब लास्ट वाली विंडो में हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। जैसे लास्ट वाली विंडो क्या होगा, जब j इज इक्वल टू एन माइनस वन होगा, ओके, j इज इक्वल टू एन माइनस वन होगा, तो हमने परफेक्ट सम को पहले चेक किया, एन माइनस टू वाली परफेक्ट सम को चेक किया कि भाई ये है कि नहीं है। अगर ये है तो हमने आंसर बढ़ा दिया, और फिर अब हमने परफेक्ट सम को एन माइनस वन वाले एलिमेंट को अब जोड़ा है, बट उसको चेक नहीं किया है, तो अब यहाँ पे चेक कर लेंगे लास्ट में। इफ परफेक्ट सम इज इक्वल टू के, तो आप क्या कर लेंगे, आंसर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। सो यस, दैट्स वाई दिस इज करेक्ट नाउ।